precious friend, हमारे प्रिय और अनमोल मित्रों, we have great joy in wishing you all of God's best this year, 2021, in your life. हमें आपके जीवन में 2021 में परमेश्वर के सर्वोत्तम की कामना करते हुए बड़ी खुशी है। It's a great joy that we could come together as a family to wish you today. और आज ये बड़े आनंद की बात है कि एक परिवार के रूप में आपको बधाई देने के लिए हम एक साथ हैं। Yes, we celebrate love as we come together as family. हाँ, जब परिवार के रूप में आते हैं तो हम प्रेम का आनंद मनाते हैं। Today's promise for this year begins with our dear mother, Mrs. Stella Dinakaran. We are going to ask her to share the word first. और सबसे पहले प्रिय माता स्टेला दिनाकरण से हम अनुरोध करेंगे कि इस वर्ष के प्रतिज्ञा वचन को हमसे बांटें। My precious people of God, I'm so happy to see each one of you. परमेश्वर के अति प्रिय बच्चों, मैं आप सबको देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ। First of all, let me wish all of you a new year, special new year greetings. सबसे पहले मैं आप सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। Yes, we have entered into the year 2021. हाँ, हम सन 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। As I was meditating this morning, I came across this verse, Isaiah 12:4-6. आज सुबह जब मैं मनन कर रही थी तो मुझे ये वचन मिला, यशाया 12:4 से 6। That's a blessed verses given by the Lord to each one of us. और ये एक धन्य वचन है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है। Let me read those verses for you. मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ना चाहूंगी। And in that day you will say, praise the Lord, call upon his name, declare his deeds among the peoples, make mention that his name is यहाँ exalted. लिखा हुआ है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। Sing to the Lord, for he has done excellent things. यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। This is known in all the earth. इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। Cry out and shout, O inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in your midst. हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। Yes, my beloved ones, as we are starting this new year, we have to sing to the Lord. हाँ मेरे प्रियो, जब हम इस नए वर्ष को प्रारंभ कर रहे हैं, हमें प्रभु के लिए भजन गाना है। Because until the last year 2020, God has done excellent things. क्योंकि पिछले वर्ष 2020 में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। And this year especially, He has prepared some excellent things for you and me. और इस वर्ष उसने आप और मेरे लिए निश्चय ही कुछ अद्भुत योजना बना करके रखी है। Do you believe that? क्या आपको ये विश्वास है? If you believe, you shall see the glory of God. अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। So we have to cry out and shout for great is the Holy One of Israel in your midst. इसलिए हमें भी ये चिल्ला करके कहना है कि हमारे बीच में जो यहोवा है वो महान है। This Holy One of Israel, our Lord Jesus Christ, is going to be with you all through this new year. यह इस्राएल का महान प्रभु यीशु मसीह इस पूरे वर्ष आपके साथ बना रहेगा। Every day you start praising Him. आप प्रतिदिन उसकी स्तुति प्रशंसा शुरू करिए। Give that day in His hand उस दिन को आप उसके हाथ में दे दीजिए and start praising Him. और उसकी प्रशंसा करना शुरू करिए। Straight away you should not share all your worries and cares before Jesus Christ. आप सीधे ही दिन के प्रारंभ में अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह को बताना शुरू न करें। But remember the goodness of God. लेकिन पहले परमेश्वर की भलाई को स्मरण रखें। Believe that He is going to be with you all through the year. विश्वास रखिए कि वो पूरे वर्ष आपके साथ साथ रहेगा। Believe that He is going to be with you all through the year. विश्वास रखिए वो पूरे वर्ष आपके साथ बना रहेगा। If you believe, you shall see the glory of God. और अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। So my beloved friends, forget about all your worries and cares of this world. इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की अपनी हर एक चिंताओं और परेशानियों को भूल जाएं। Even the sickness you are going through in your body, you are having in your body and suffering.
यहाँ तक कि जो रोग आपके शरीर में है परेशान कर रहा उसे भी भूल जाए। The great God who wants to do excellent things in your life will remove every obstacle, every problem, every suffering from your life from this day. वो महान परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आज के दिन से आपकी सारी परेशानी और चिंताओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। Now all of us are going to pray with one accord, और अब हम सब मिलकर के एक मन होकर के प्रार्थना करेंगे, and the Lord will give every blessing from this time onwards for the whole of this year. और इस पूरे वर्ष में इसी घड़ी से प्रारंभ करके परमेश्वर हमेशा हमें आशीष देते रहेंगे। Shall we pray? तो आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, thank you Lord for the wonderful presence. हमारे अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। As per your verse, your promise, you are going to be with us all through this year in an excellent manner. और निश्चय ही इस वर्ष के प्रतिज्ञा वचन के अनुसार इस पूरे वर्ष आप हमारे साथ उपस्थित बने रहेंगे। Guide all your children in the excellent way and give them all necessary wisdom, knowledge, blessing, everything, the whole of this new year. इस नए वर्ष में प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ बने रह करके जो भी आवश्यक है वो ज्ञान, वो अगुवाई और वो सारी चीजें प्रभु आप उन्हें देते रहिए। Whoever is suffering because of various sicknesses or needs or problems of their lives, Lord, remove everything right now. Let them have peace, joy and all God's abundant blessings. जो भी उनकी समस्याएं, रोग, परेशानियां उनके जीवन में है, इसी समय प्रभु जी आप उसे निकाल दें और जो भी आशीष है, आनंद और शांति उन्हें चाहिए, इसी घड़ी आप उन्हें दे दें। Thank you, Lord. You are going to lead all of us, your children and myself, in a beautiful way, in an excellent way, the whole of this new year. धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि इस नए वर्ष में आप मुझे और आपके सारे संतानों को अद्भुत तरीके से अगुवाई देने वाले हैं। Lay thy mighty hand upon each one of your children. आप सामर्थी हाथ को आपके हर एक बच्चे के ऊपर Let रखें। your blessings come upon them in a new way. उन्हें आपकी आशीषें उनके ऊपर नए तरीके से आ जाएं। Strengthen their body, soul and mind. आप उनकी देह, आत्मा और प्राण को प्रभु जी बलवंत करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Wow, that was great. हाँ, ये तो सचमुच में बहुत ही जबरदस्त था। The Lord showed me Joel 2:25 to 27. प्रभु ने मुझे जो वचन दिखाया वो है योवेल 2:25 से 27। 2021, सन 2021 जो a है, year of restoration. यह जो है पुनर्वापसी का वर्ष है। 2020 has been a dark year. सन 2020 जो है हमारे लिए एक काला वर्ष रहा है। We have had lockdowns, हमारे बीच में लॉकडाउन रहे, shutdowns, शटडाउन्स भी रहे। losses of loved ones, हमने अपने प्रियों को इस वर्ष में खोया है, losses in jobs. नौकरियों को हमने खोया है। More than everything, we felt so bound, unable to enjoy the hope and the power to go forward. हमने हमेशा ये महसूस किया मानो हम एक बंधन में हैं और हमारी आशा और आगे बढ़ने की क्षमता जाती रही है। But then for 2021, which is the first year of the 2020s, लेकिन इस नए वर्ष 2021 में जो कि इस दशक का पहला वर्ष the है, Lord says, यहोवा जो है कहता है, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. The crawling locust, the consuming locust, the chewing जिन locust. वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। God says, I will restore all that has been eaten away in your life. परमेश्वर यहोवा कहता है तुम्हारे जीवन में जो भी खा लिया गया था मैं उसे वापस भर दूंगा। This is the promise for 2021. और यही 2021 के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 1 Samuel 30 and verse 19. पहला शमूएल 30 का वचन 19 बताता है, The Bible says, David recovered all that he lost. या बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने जो भी खोया था वह सब वापस पाया। God is a God who makes us recover everything we have lost. Even the time that we have lost, He makes us recover. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम जो भी खोते हैं वो हमें वापस दिलाता है, यहाँ तक कि वो समय जिसे हम खो चुके हैं। You may say, I have lost so many years
because I was living in sin, or I was a failure, or I had losses. आप कह सकते हैं कि मैंने अनेक वर्ष खोए हैं क्योंकि मैं पाप में जी रहा था, या मैं एक असफल व्यक्ति था, या मेरे जीवन में हानियां हुई। But God has the power to even turn back the time and make you get back everything in 1 year for nearly 4 years, 5 years that you had already lost. लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ है कि आपने अपना 3, 4, 5 साल जो भी खोया है, एक ही वर्ष में वो आपकी सारी क्षतिपूर्ति कर दे। For this to happen, और ऐसा होने के लिए he says in verse 27, वचन 27 में वो ये कहता है, You shall know that I am in the midst of Israel. तुम जान लोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, I am the Lord, और मैं यहोवा हूँ, your God, तुम्हारा परमेश्वर हूँ, and there is no other. और कोई दूसरा नहीं है। So God says, this year I will be in your midst. इसलिए परमेश्वर कह रहा है, इस वर्ष मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। Last year, maybe you felt all alone, lonely, full of fear, trying to battle everything yourself. हो सकता है पिछले वर्ष आपको बड़ा एकाकी लगा, मानो आप अकेले हैं और अकेले ही आप सारी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। Last year, maybe we were struggling without revelations or divine connections. हो सकता है बिना प्रकाशन या ईश्वरीय संबंध के आप पिछले वर्ष संघर्ष करते रहे हैं। But 2021, लेकिन सन 2021 में you will feel my presence. You will know that I am with you. You will experience me personally. तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे और तुम व्यक्तिगत तौर से जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। And secondly, he says और दूसरी बात वो कहता in है verse 26, योएल 2:26 में, You shall eat in plenty and be satisfied. तुम भरपेट खाओगे और संतुष्ट होगे। The Lord says, I will restore the year for you to have plenty and be satisfied this year. यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें वापस इतना दूंगा कि तुम्हारे पास भरपूरी के साथ और संतुष्टि के लिए This is पर्याप्त। not for all. ये हर एक के लिए नहीं है, This is for those who claim the Lord Jesus to be their God and who keep Him with them. ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर के चलते He's हैं। going to restore the year वो उन वर्षों को हमारे लिए वापस ले with आएगा, all the plentiful blessings. वो पूरी भरपूरी की आशीषों के साथ In लाएगा। Psalm 65:11, भजन संहिता 65 वचन 11 में the scripture says He fills the year with goodness शास्त्र कहता है, तूने माने इस वर्ष को भलाई से भर दिया है, and He makes our path to drip with honey. और वो ऐसा करता है कि हमारे रास्ते में शहद टपकता He है। goes before us pouring honey and fatness in our path. वो हमारे रास्ते में आगे आगे जा करके हमारे लिए मधु और चर्बी को टपकाता चलता है। So the year will be sweet and the year will be full of satisfaction and fatness. और इसलिए ताकि ये वर्ष जो है हमारे लिए मधुर हो और वो हमारे लिए पूरी तरह संतुष्टि का वर्ष हो। And what is the greatest fatness that you can have in your life? आपके जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है जो आप पा सकते हैं? It is the holiness of God, ये है परमेश्वर की पवित्रता, the holy presence of God. परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति। Yes, according to Matthew 24:7, हाँ, मत्ती 24 वचन 7 के अनुसार से, Revelation 22:11, प्रकाशित वाक्य 22 का वचन 11 अनुसार, surely in the world, even this year, there'll be an increase of unrighteousness. निश्चय ही इस वर्ष भी संसार में अधार्मिकता जो है बढ़ती चली जाएगी, Increase of filth, विश्वास में भी बढ़त होती जाएगी, increase of the rumors of wars in the nations. और देशों के बीच में लड़ाइयों की जो चर्चा और भ्रम है वो भी बढ़ेगा, There will be earthquakes, और भूडोल भी होंगे, there will be grasshoppers attacks, और टिड्डियों के आक्रमण भी होगा, and the pestilence will grow. और महामारी जो है बढ़ेगी। But in all that, लेकिन इन सब में God will come close to His people परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के करीब आएगा to fill them with the fatness of holiness, His holy presence. ताकि वो अपनी पवित्रता, अपनी पवित्र उपस्थिति के साथ हम सबको संतुष्ट करे। We will enjoy His presence this year as never before. और हम इस वर्ष में उसकी उपस्थिति को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे पहले नहीं किया। Then all the prosperity that we need to survive in this world will come to us. और वो सारी समृद्धि जो इस संसार में रहने के लिए हमारे लिए जरूरी है हमारे पास And आएगी। fourthly, He will give us honor for every shame we have gone through. और चौथी बात,
हमने जितना भी शर्मिंदगी सा उसके बदले वो हमें आदर देगा। He says, my people will never be ashamed. वो कहता है मेरे लोग कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। We will even have honor before the kings. हाँ, हम यहाँ तक कि राजाओं के सामने भी आदर पाएंगे। Isaiah 49:23, यशाया 49 वचन 23 के अनुसार, Isaiah 29:22, यशाया 29 वचन 22 के He will अनुसार give us great honor. वो हमें महान इज्जत देगा। Yes, He will restore all the holiness हाँ, वो सारी पवित्रता को वापस ले आएगा हमारे लिए and make us experience His presence as never before. और हम उसकी उपस्थिति को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया। And we'll get back all that we lost and enjoy His presence and revelation. और जो कुछ भी हमने खोया है वो सब वापस पा करके हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेने पाएंगे। All the prosperity सारी समृद्धि वापस and होगी all the honor और सारा आदर भी as we have Him as our God. जब हम उसे अपना परमेश्वर बनाएंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Well, we've finished playing our 2020 last year. अब मुझे आशा है कि पिछले वर्ष में हमने अपना 2020 खेलना खत्म कर दिया। 2020 cricket match is over. जो 2020 का क्रिकेट मैच था वो चला गया। Young people this year, according to Matthew 4:4, लेकिन इस वर्ष में जवानों मत्ती 4:4 के अनुसार we are not going to live by bread alone, हम केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेंगे, but by every word that comes from the mouth of God. लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Many times, where many young people are hungry for food all the time. कई बार हम जो जवान होते हैं खाने के लिए बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं We're hungry to be happy through some pleasure or something. और कुछ आनंद बनाने के लिए हम बड़े ही भूखे रह जाते हैं। They say, I can't live without food. हम कहते हैं मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता हूँ। But my friend, none of those things are able to make us full. लेकिन मेरे प्रियो इनमें से कोई भी जो है हमें संतुष्ट नहीं करते, Those are able to truly satisfy us. जो कि हमें पूरी तरह से सचमुच में संतुष्टि दे। We sit in emptiness at some point of the day. और दिन में कभी न कभी हम बिल्कुल शून्यता के साथ बैठते हैं Our heart is still left empty. और हमारा हृदय जो है वो खाली होता है। But God says you're going to live by every word that I speak to you. लेकिन परमेश्वर कहता है जो हर एक वचन मैं तुमसे कहूंगा उससे तुम जीवित रहोगे His word is coming to you. और उसका वचन आपके लिए आ रहा है। Get ready to receive it. उसे स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएं। God is giving us such a grace that early in the morning He is going to help us read the Bible. परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देगा कि हम सुबह को ही भोर के समय में ही उसके वचन बाइबल को पढ़ेंगे। We think if I need something in the day, right when I face an exam, I'll pray. हम सोचते हैं आज के दिन किसी परीक्षा में पढ़ने के पहले कि वो ठीक हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा। I'll pray when I'm in trouble. समस्या में पढ़ने पर मैं प्रार्थना करूंगा That's how I live with the Lord. और ऐसे ही मैं प्रभु के साथ जीऊंगा। Yes, I seek Him by praying when I need Him. हाँ, जब मुझे आवश्यकता होती है तो मैं प्रार्थना के द्वारा उसे ढूंढता हूँ। But my friend, लेकिन मेरे प्रिय we मित्रों, live by the Word of God. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हैं। When you read His Word and receive His promise in the morning, जब आप उसके वचन को पढ़ते और उसकी प्रतिज्ञा को सुबह पाते हैं, it comes to you like fire. वो आपके लिए आग की तरह आता है And it makes you full within your heart, burning in you. और ये आपके अंदर आपके हृदय में मानो धड़कने लगता है And you go out as a lion. और आप एक सिंह की तरह बाहर जाते हैं। When we are so full, we don't even need to pray. जब हम इतने ज्यादा भरे हैं तो हमें प्रार्थना की भी जरूरत नहीं होती, Because God has spoken and given us everything through that word. क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। So we go into that day full and only to see the victories that God gives us through that तो word. हम भरपूर होकर के इस दिन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जय को पाते हैं That's why He speaks to us. और इसीलिए वो हमसे बातचीत करता है। And John 15:7 says, यूहन्ना 15:7 कहता है, if you remain in me अगर तुम मुझ में बने रहो and if my words remain in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे then I will do or give you whatever you ask for. तो तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। That's why we need His word to remain in us. इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसमें और उसका वचन हम में बना रहे All our needs are met then. और तब हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं We get victories in everything we face. और जो भी हम सामना करते हैं हर एक में जयवंत होते हैं। God raises up in our job, परमेश्वर हमें अपने काम में ऊंचा उठाता helps है, us in our study, हमारी पढ़ाई में सहायता करता है and gives us great talent to display in our profession. और हमारे कार्यों में
आगे बढ़ने के लिए हमें महान गुणों को भी देता है। It comes through that word when you receive it in the morning. और ये उस वचन से आता है जिसे आप भोर को प्राप्त करते हैं। Only then we see God's power in our lives. और तभी हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पाते हैं। And truly you are going to see that power in action this year, my friend. और निश्चय ही इस वर्ष में मेरे प्रिय मित्रों, आप उस सामर्थ को अपने जीवन में कार्य In करता the midst देखेंगे। of dryness, हर एक सूखेपन के बीच में भी you will thrive. आप जो है बढ़ेंगे, You will shine. आप चमकेंगे And your heart will be so glad with the Lord. और आपका हृदय प्रभु से बहुत आनंदित होगा। It's all through the word of God. और ये सब प्रभु के वचन से होगा। So that's the blessing God is giving us young people. तो हम जो जवान हैं, परमेश्वर हमें यही आशीष दे रहे हैं। So you will sit in the morning and enjoy Him by listening to Him. तो आशा है कि आप भोर को उसके साथ बैठ करके उसको सुनने का आनंद लेंगे। Amen. Praise God. आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah, even last year, हाँ, पिछले वर्ष भी in 2020, सन 2020 में there was a lot of fear that went around. पूरे लोगों के बीच में बड़ा ही डर फैला हुआ था। Fear because we might get the virus, और डर इस बात का कि हमें वायरस लग जाएगा, or if our loved ones might be infected. या हमारे प्रिय जो हैं वो संक्रमित हो जाएंगे। Fear because some people weren't able to pay their hospital bills. और डर क्योंकि कई लोग जो है अस्पताल का बिल नहीं दे पा रहे थे। Fear because they were losing jobs. और डर क्योंकि वो अपनी नौकरियों को खो रहे थे। And there was a lot of confusion going around. और चारों तरफ बहुत ज्यादा भ्रम जो है फैला हुआ था। Even the children, because they didn't have Wi-Fi, they couldn't get into online classes. They were afraid what would happen to their future. और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको वाईफाई न मिलने के कारण डर रहे थे कि उनके आगे भविष्य के लिए क्या होगा। So there were so many things happening, one after the other, one after the other. और इस तरह से एक के बाद चीजें हो रही थी। And it would build up so much that some people would feel like, why should I live anymore? और इसका दबाव इतना ज्यादा हो गया कि कुछ लोगों को लगा कि मैं आगे क्यों जीऊं, I'm not able to bear it. मैं इसे सहन नहीं कर सकता। What is going to happen in my future? मेरे भावी जीवन में क्या होने वाला है, How am I going to take care of my family? मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा, How am I going to feed my kids? मैं अपने बच्चों को कैसे भोजन दूंगा। So they might have so much of anxiety और उनके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी और चिंताएं थी। that every morning when they wake up, they don't even want to get up out of their bed और यहाँ तक कि प्रति भोर को जब वो उठते हैं तो बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते थे, and go to work or do their jobs ताकि वो जा करके अपने कार्यों को आगे करें। because of all the things that are happening in their life. उन सारी चीजों के कारण जो उनके जीवन में चल रही थी। Yes, that anxiety sometimes builds up so much that they can't even breathe हाँ, कई बार चिंताएं इतने ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि हम सांस नहीं ले or पाते, do basic everyday things. या हमारे दिन की मूलभूत चीजों को नहीं कर Yes, पाते। but the Bible says in Philippians 4:6 and 7, लेकिन बाइबल जो है फिलिप्पी 4 वचन 6 और 7 में बताती है, it says, don't be anxious about anything, यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता न करो, but in every situation by prayer and petition, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा with thanksgiving, धन्यवाद के साथ present your request to God. तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं, And the peace of God that transcends all understanding और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. तुम्हारे विचारों और हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। Yes, when we feel anxious, हाँ, जब हमें चिंताएं होती हैं immediately we must tell it to God. तो हमें तत्काल ही उसे परमेश्वर को बताना है। And when we tell God और जब हम परमेश्वर को ये बताते हैं and thank Him for what He is going to do in our life, और वो हमारे जीवन में जो करने वाला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, our faith builds up. तो हमारा विश्वास जो है बढ़ जाता है। And we'll say, God is going to take care of everything. और हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है सब चीजों की चिंता करेगा। That faith gives us that peace. और वो विश्वास जो है हमें वो शांति देता है। Not temporarily we'll feel happy and satisfied, ये नहीं कि हम थोड़े समय के लिए ही आनंद या संतुष्टि पाते but हैं, that God is going to take care of everything. लेकिन परमेश्वर जो सारी चीजों को संभालेगा। It is not my business to be anxious or worried anymore. मेरा काम जो है किसी प्रकार की चिंता करना नहीं है। The faith means that you're believing that it's going to be done. तो विश्वास करने का मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हो जाएगा। So our job is to just keep thanking God. तो हमारे कार्य बस ईश्वर का धन्यवाद करना है। This year we are going to experience that.
Yes. हाँ, इस वर्ष में आप उसका अनुभव करेंगे। Last year we felt so lost in the darkness, but this year we're going to feel that God is going to do everything for us. पिछले वर्ष में हमने महसूस किया कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन इस वर्ष में प्रभु हमारे लिए सब कुछ ठीक करने जा रहे And हैं। He's going to make us pray to Him and believe and give thanks also. और वो हमसे प्रार्थना कराएगा, विश्वास कराएगा, ताकि हम उसका धन्यवाद भी करें। Building that relationship with God this year और हम इस वर्ष में अपने संबंध को ऐसा ही करेंगे, and trusting in Him no matter what. और चाहे कुछ क्यों न हो, हम उस पर विश्वास रखेंगे। Amen. आमीन। So that's what I learned last year with this verse. और इस वचन से मैंने पिछले वर्ष जो है यही सीखा था। Even during the time that I was writing for my album, जब मैं अपने एल्बम के लिए लिख रही थी, there were so many things happening in my life that gave me so much anxiety. मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत चिंतित होती थी। When I would go to the recording studio to record the song, और जब मैं गाने रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती थी, I would feel so breathless thinking of the problems in my life. मेरे जीवन की समस्याओं को स्मरण और सोच करके मैं सांस नहीं ले सकती थी। I would have to take breaks because of how much it was, how overwhelming it was. और वो इतना ज्यादा मुझे परेशान करता था कि मुझे बीच में ब्रेक लेने पड़ते थे। Before filming for the Daily Promise, I would feel so anxious. प्रतिदिन के प्रतिज्ञा वचन को फिल्माने के पहले मुझे बड़ी चिंता होती थी। And my body would be shaking because of the mental pressure. और इस मानसिक तनाव के कारण से मैं कांपती रहती थी। During that time, I was reminded of this verse. और उन दिनों में ही मुझे यह वचन जो है स्मरण आया Don't be anxious about anything. कि किसी बात की चिंता न करो, Tell God, परमेश्वर को बताओ He will give you peace. और वो तुम्हें शांति देगा। So because I trusted in Him, I had peace about the situation. और मैंने उस पर विश्वास किया, इसलिए उस परिस्थिति में मैंने शांति पाई। I would literally tell Him, Lord, I've given this thing to you. I'm not going to worry मैं anymore. सचमुच में यही कहती, प्रभु मैंने आपको दे दिया, इसलिए अब मैं इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करूंगी। And because of those situations, I was able to write out of faith. It'll happen, and it's. और उन परिस्थितियों के कारण से ही मैं विश्वास के साथ लिख सकती थी और ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। It was a reassuring thing for me personally. और मुझे व्यक्तिगत तौर से उसका पुनर्विश्वास होता था। Brought out that song, it'll happen in its time. So don't worry, it will happen. और आपने वो गाना जो है निकाला कि चिंता न करो, सब कुछ अपने समय पर होगा। So that song really ministered to और me सचमुच में वो जो गीत है उसने मुझे भी छुआ। in your album Journey. आपके उस एल्बम जर्नी में जो आपने गाया है। So this year we are going to enjoy God's peace and see miracles happen तो इस वर्ष हम परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे और उसके चमत्कारों को देखेंगे as we pray to Him, believing He is going to give an answer. जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि वो हमें उत्तर देगा। Shilpa, शिल्पा, आप क्या कहोगे? This year, what I felt the promise was is from James 4:8. इस वर्ष के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा वचन महसूस किया वो मेरे लिए याकूब 4:8 से है। Draw near to God and He will draw near to you. यहोवा के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। So the Lord promises that He will draw closer and more near to all of us. तो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारे और भी निकट आएगा। But what we have to do is we have to draw closer to Him. लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसके निकट जाना है। The Bible also says in Psalms chapter 119 verses 97 to 100. भजन संहिता 119 और उसके 97 से 100 वचन के बीच में वचन कहता है, When we meditate on the word of God, He fills us with so much of wisdom. जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो वो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है। The wisdom we need to survive in this world. इस संसार में जीने के लिए जिस ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता वो देता है। The verse says, वचन कहता है, when we are filled with this wisdom, we are wiser than my enemies. जब हम इस बुद्धि से भर जाते हैं तो हम अपने शत्रुओं से भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। He gives us more insight than your teachers itself. वो आपके शिक्षकों से बढ़कर के आपको अंतर्दृष्टि देता है। And He gives us more understanding than the elders of the और land. वह नगर के प्राचीनों से बढ़कर के हमें समझ देता है। The Lord will fill each one of us with so much of wisdom परमेश्वर हमें से हर एक को इतना ज्यादा ज्ञान से भरेंगे that other people will be shocked when they look at us. तो जब दूसरे लोग हमें देखेंगे वो चकित हो जाएंगे। Oh, how come she's having so much of wisdom? They'll wonder. ओ वो सोचेंगे इसके अंदर इतनी ज्यादा ज्ञान कहाँ से आ गया। So this year the Lord is promising us that when we draw closer to Him, He will draw closer to us. तो इस वर्ष के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हम उसके करीब आएंगे तो वो हमारे और करीब आएगा।
Amazing. Praise God. So this year it's going to be a year of getting very close to God and God getting very close to us. तो यह जो वर्ष है परमेश्वर के और निकट जाना है और परमेश्वर हमारे और करीब आएंगे। And now let's move on to Sister Evangeline, Mrs. Evangeline, Mother Evangeline and Grandmother Evangeline. तो अब आई हम बहन इवेंजलिन, मिसेस इवेंजलिन, माता इवेंजलिन और दादी इवेंजलिन से सुन लें। We are so happy that the Lord has given us one more addition into our family. हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे परिवार में एक और सदस्य की बढ़ती हुई है। Next year she will speak. This year she is resting, listening to all the words. और इस वर्ष तो वो चुपचाप है, सब कुछ सुन रही आराम से, लेकिन निश्चय ही अगले साल वो जो है हमें कुछ न कुछ बोल कर कहेगी। For this year, the Lord has given me the promise verse from John 1:51. इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है मुझे, वह है यूहन्ना 1:51 में। Here the Lord says, "Most assuredly I say to you, hereafter you shall see heaven open." यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे And the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। Yes, the Lord knows our hearts, हाँ, परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है। especially for the year 2021. I was asking God for the open heaven. विशेष करके सन 2021 के लिए मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि स्वर्ग खुला हुआ हो। And the Lord knew what was in the heart of Nathaniel also. और परमेश्वर जो है नथानिएल के दिल में क्या चल रहा है जानते थे। He saw deep into his heart. उन्होंने उसके हृदय को गहराई से देख लिया। And he said, "You are an Israelite in whom there is no deceit." और उन्होंने कहा कि तू सचमुच में इस्राएली है जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं। Yes, dear friends, the Lord is looking deep into your heart. हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके हृदय के अंदर देख रहा है, The desires of your heart. आपके हृदय की लालसाओं को देख रहा And है। the Lord says to you, you will have open heaven. और परमेश्वर आपसे कहता है स्वर्ग तेरे लिए खुला हुआ होगा। When Jacob was praying to God, he saw heaven open. जब याकूब जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। When Jacob prayed unto God in the wilderness, the Lord showed him the heaven. जब याकूब ने बियावान में परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग दिखाया। He literally saw angels around him. और सचमुच में उसने अपने चारों तरफ स्वर्गदूतों को देखा। They were ascending and descending on the ladder. और वो एक सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। And for Ezekiel the prophet also, the heaven was open one time. और सही समय पर यह यहेजकेल नबी के लिए भी स्वर्ग जो था वो खुल गया। The heaven was open for John when he was in the Patmos island. और जब यूहन्ना जो है पतमुस टापू पर था, उसके लिए भी स्वर्ग खुल गया। The Lord revealed to him the things that would be happening in the future. और परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली चीजों को उसे प्रकट किया। And Stephen and the people were stoning him to death. और जब स्तिफनुस को लोग जो है पथरवाह करके मार रहे थे, Blood was oozing out of his body. उसके शरीर से रक्त तो बहा चला जा रहा था। How much pain he would have been having. उसने कितना ज्यादा दर्द सहा होगा। But in the midst of that, the Lord showed him the heaven. लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर ने उसे खुला हुआ स्वर्ग दिखाया। He saw Jesus sitting at the right hand of God. उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। Yes, you will see God in the midst of your pain, in the midst of your trouble. हाँ, अपनी समस्या और अपने परेशानी के बीच में आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। You have suffered enough. आपने पर्याप्त दुख सहा है। The Lord says, "It's enough, my child." यहोवा कहता है मेरे बच्चों बस हुआ। The Lord says, "You love me so much, प्रभु कहता है तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो and you are precious in my sight. और मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो, Let me show you heaven." तो चलो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ। Yes, this year 2021 is going to be a special year for you. हाँ, ये वर्ष 2021 आपके लिए एक विशेष वर्ष होने वाला है। The Lord said in the last days,
I will pour out my spirit upon all flesh. प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगा। Your sons and daughters will prophesy. तुम्हारे बेटे बेटियां जो है भविष्यवाणी करेंगे। Your young men will see vision. तुम्हारे जवान जो है दर्शन देखेंगे। Old men will dream dreams. और तुम्हारे पुरनिये जो है स्वप्न देखेंगे। Yes, this is going to happen in reality. हाँ, हम हकीकत में अब इस चीज को होता हुआ देखेंगे। You will see visions. आप जो है दर्शन को देखेंगे। You will be seeing angels ascending and descending. आप स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते और चढ़ते देखेंगे। You will be having revelations from God. आप परमेश्वर से प्रकाशनों को पाएंगे। The Spirit of truth will lead you into all truth. और सत्य की आत्मा आपको हर एक सत्य में अगुवाई करेगा। You will know all things. आप सब बातों को जानेंगे। The Lord will make you remember everything. परमेश्वर आपको सब कुछ स्मरण दिलाएंगे। This year is going to be so sweet for you. और ये वर्ष आपके लिए अति मधुर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Shall we pray? धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you, Lord, this year in the midst of all the tribulations and the darknesses that will surround the world, you will come very close to us. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इस परेशानी और विपत्ति से भरे हुए वर्ष में भी जब अंधियारा है, आप हमारे लिए आएंगे। You will literally make us feel you so close. आप अक्षरशः हमें महसूस कराएंगे कि आप हमारे अति निकट हैं। Give us the grace to have our eyes open to see you, Lord. तो अनुग्रह दे प्रभु कि हमारी आंखें खुली रहें कि हम आपको देखने पाएं, To have revelations from you. ताकि हम आपसे प्रकाशनों को पाएं, To hear your word every day. कि आपके वचन को प्रतिदिन सुने, To receive wisdom. आपसे ज्ञान पाए And to be guided by you, Lord. और आपके द्वारा से अगुवाई प्राप्त करें And प्रभु, do everything in और peace. सब कुछ शांति पूर्वक करें, And give us back all that we have lost. और जो कुछ हमने खोया है उसे हमें वापस लौटाइए। All the holiness. सारी पवित्रता, Divine presence of God. परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति And all the blessings for our labor, for us to eat in plenty and be satisfied. और हमारे परिश्रम का सारा प्रतिफल, ताकि हम सब कुछ भरपूरी के साथ खाकर संतुष्ट And हों। you will honor us in the very place where we have gone through shame. और जिस जगह पर हमारा अनादर हुआ, उसी जगह आप हमें आदर के साथ खड़े Through करें। all this you will honor us even before kings. और ऐसा कि आप हमें राजाओं के सामने भी प्रभु आदर Thank you दें। for this great year of restoration and open heaven. आपका धन्यवाद इस पुनर्प्राप्ति के वर्ष के लिए और खुले हुए स्वर्ग के लिए प्रभु जी। We surrender ourselves to you for this blessing. हम इस आशीष के लिए अपने आप को आपके हाथ में अर्पित करते हैं। Be the Lord of our lives in 2021 too, Lord. आने वाले 2021 में प्रभु हमारे जीवन के कर्ता बने, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Have a blessed year 2021. सन 2021 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।